नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। जिस पत्र का इंतज़ार था वो आपके सामने है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी DOPT के जिस पत्र का इंतज़ार था वो पत्र आपके सामने है और वो आज की ही डेट का है, 20 मई 2025 का। इस पत्र का हम वाचन करें इससे पहले ये बता दें कि हमारा जो पेंशनर्स फोरम ग्रुप है और इसके अलावा एक पेंशनर सरस मंच, तो इन दोनों ग्रुपों में इस तरह की एकदम ताज़ा जानकारी पेंशनरों से संबंधित आ जाती है और ये हमारा इसमें कोई प्रयास नहीं है। ये हमारे ग्रुप में हमारे प्रबुद्ध मित्र इस तरह की जानकारी प्रेषित कर देते हैं, शेयर कर देते हैं और ये हमारे शहजाद भाई हैं, बहुत ही प्रबुद्ध और लगातार नज़र रखते हैं। उन्होंने ये पत्र शेयर किया है। तो हम आपसे पहले ये निवेदन कर दें कि आप किन्हीं यूट्यूबरों के भरोसे न रहकर इस तरह के ग्रुप को ज्वाइन कर लें। हम ये नहीं करें, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अगर कोई और ग्रुप ऐसा हो तो उसको ज्वाइन कर लें, लेकिन हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने पर आपको न तो कोई चार्ज देना होगा और भरोसे वाली पूरी तथ्यात्मक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ जानकारी तो मिलेगी ही, साथ में अगर आपका कोई प्रश्न होगा तो उसका उत्तर भी मिलेगा। और अगर कहीं से नहीं होता तो फिर अंत में हम प्रयास करके उसका उत्तर भी देते हैं और फिर हम अपने सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये पत्र शहजाद भाई ने भेजा है और ये आप लोगों की जानकारी के लिए है। जो ग्रुप से जुड़े हैं उन्होंने ये जानकारी प्राप्त कर ली होगी और जो नहीं जुड़े हैं वो ग्रुप से जुड़ जाएंगे। हम डिस्क्रिप्शन में दोनों फोरम का लिंक दे देंगे। तो अब हम इस पत्र का वाचन करते हैं। ऑफिस मेमोरेंडम, ये भी बता दें अभी इसको अंग्रेजी में वाचन करेंगे, बाद में इसका हिंदी रूपांतर भी आप लोगों की जानकारी के लिए देंगे, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं, पेंशनर्स हैं, वो हिंदी भाषा को अच्छे से समझते हैं। सब्जेक्ट: ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट ऑन 1 जुलाई 1 जनवरी टू द एम्प्लॉइज हु रिटायर्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ऑन 30th June 31st December respectively for the purpose of calculating their pensionary benefit regarding. The undersigned is directed to invite reference to the instructions issued by this department's OM of even number dated 14/10/2024, copy enclosed, regarding grant of notional increment on 1 July 1 January to the central government employees who retired are retiring from service a day before it become due, that is on 30th June 31st December, and have rendered the requisite qualifying service as on the date of their superannuation with satisfactory work and good conduct for calculating the pension admissible to them. The said instructions were issued in compliance of the interim order dated 6/9/2024 passed by the Honorable Supreme Court while having MA number 2400/2024 filed by Ministry of Railways along with several intervention applications tagged therewith. It was indicated therein that the action taken shall be subject to the final outcome of the petition, diary number 36418/2024, filed by this department seeking review of the order dated 11/4/2023 of the Honorable Supreme Court in CA number 2471/2023 on the subject matter. 2. Honorable Supreme Court by order dated 18/12/2024 had dismissed the review petition, diary number 36418/2024, filed by this department with the observation that there is no error apparent on the face of the record, warranting reconsideration of the order impugned. Honorable Supreme Court has subsequently disposed
of MA number 2400/2024 filed by Ministry of Railways and other petitions by order dated 20th to 2025 while issuing the following final directions in the matter. A. The judgment dated 11/4/2023 will be given effect to in case of third parties from the date of the judgment, that is the pension, by taking into account one increment will be payable on and after 1/5/2023, enhanced pension for the period prior to 30th/4/2023 erroneously mentioned as 31/4/2023 in the order will not be paid. B. For persons who have filed writ petitions and succeeded the directions given in the said judgment will operate as res judicata, and accordingly an enhanced pension by taking one increment would have to be paid. C. The direction in B will not apply where the judgment has not attained finality and cases where an appeal has been preferred or if filed is entertained by the appellate court. D. In case any retired employee filed an application for intervention implement writ petition original application before the Central Administrative Tribunal High Courts Supreme Court, the enhanced pension by including one increment will be payable for the period of 3 years prior to the month in which the application for intervention implement writ petition original application was filed. 4. The Honorable Supreme Court has decided that the direction referred at para 3D above will not apply to the retired government employee who filed a writ petition original application or an application for intervention before the Central Administrative Tribunal High Courts Supreme Court after the judgment in Union of India and others versus M. Siddharaja, as in such cases directions referred in para 3A will apply. 5. In addition, Honorable Supreme Court has clarified that in case any excess payment has already been made, including areas such amount paid will not be recovered. Court has decided that pending applications, including all intervention implement applications, shall stand disposed of in terms of this order. 6. The matter has been examined in consultation with Department of Expenditure and Department of Legal Affairs. It is advised that in pursuance of the above referred order dated 20th to 2025 of the Honorable Supreme Court, action may be taken to allow the increment on 1st July 1st January to the central government employees who retired are retiring a day before it became due, that is on 30th June 31st December, and have ended the requisite qualifying service as on the date of their superannuation with satisfactory work and good conduct for calculating the pension admissible to them as specifically mentioned in the orders of the Honorable Supreme Court. Grant of the notional increment on 1st January or 1st July shall be recognized only for the purpose of calculating the pension admissible and not for the purpose of calculation of other pensionary benefits. 7. This issues with the concurrence of Department of Expenditure vide their diary number 08-09 2019 E3rd A volume 3rd 4265134 dated 29/4/2025 and Department of Legal Affairs by computer diary number E144903 dated 17/3/2025 हिंदी वर्जन बिल फॉलो। अब उसी पत्र का ये हिंदी रूपांतर। विषय 30 जून 31 दिसंबर को केंद्र सरकार की सेवा में सेवानिवृत्त हुए
कर्मचारियों को उनके पेंशन लाभों की गणना के प्रयोजनार्थ 1 जुलाई 1 जनवरी को काल्पनिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के संबंध में नीचे हस्ताक्षरकर्ता को इस विभाग के दिनांक 14/10/2024 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन प्रतिलिपि संलग्न के तहत जारी निर्देशों का संदर्भ आमंत्रित करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई 1 जनवरी को काल्पनिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के बारे में बताया गया है, जो अपनी नियत तिथि से एक दिन पहले यानी 30 जून 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि तक संतोषजनक कार्य और अच्छे आचरण के साथ अपेक्षित अर्हक सेवा प्रदान की है, ताकि उन्हें स्वीकार्य पेंशन की गणना की जा सके। उक्त निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 6/9/2024 को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में जारी किए गए थे, जबकि रेलवे मंत्रालय द्वारा दायर MA संख्या 2400/2024 के साथ साथ कई हस्तक्षेप आवेदन भी संलग्न हैं। इसमें संकेत दिया गया था कि की गई कार्रवाई इस विभाग द्वारा दायर याचिका उपसंख्या 36418/2024 के अंतिम परिणाम के अधीन होगी, जिसमें विषय वस्तु पर CA संख्या 2471/2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11/4/2023 के आदेश की समीक्षा की मांग की गई है। नंबर 2, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 18/12/2024 के आदेश के तहत इस विभाग द्वारा दायर समीक्षा याचिका उपसंख्या 36418/2024 को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया था कि रिकॉर्ड को देखने पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं होती है, जिसके कारण आदेश पर पुनर्विचार किया जाना आवश्यक हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में रेलवे मंत्रालय द्वारा दायर MA संख्या 2400/2024 और अन्य याचिकाओं का दिनांक 20/2/2025 के आदेश के तहत निपटारा कर दिया और मामले में निम्नलिखित अंतिम निर्देश जारी किए। का दिनांक 11/4/2023 का निर्णय तीसरे पक्ष के मामले में निर्णय की तिथि से प्रभावी होगा, अर्थात एक वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन 1/5/2023 को और उसके बाद देय होगी। 30/4/2023 से पहले की अवधि के लिए बढ़ी हुई पेंशन आदेश में गलती से 31/4/2023 के रूप में उल्लेख किया गया है का भुगतान नहीं किया जाएगा। जिन व्यक्तियों ने रिट याचिकाएं दायर की हैं और सफल हुए हैं, उनके लिए उक्त निर्णय में दिए गए निर्देश रिस जुडिकाटा के रूप में काम करेंगे और तदनुसार एक वेतन वृद्धि लेकर बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करना होगा। B में दिए गए निर्देश लागू नहीं होंगे जहां निर्णय अंतिम रूप नहीं ले पाया है, और ऐसे मामले जहां अपील पेश की गई है या यदि दायर की गई है तो अपीली अदालत द्वारा उस पर विचार किया गया है। यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालयों, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हस्तक्षेप अभियोग रिट याचिका मूल आवेदन के लिए आवेदन दायर किया है तो एक वेतन वृद्धि सहित बढ़ी हुई पेंशन हस्तक्षेप अभियोग रिट याचिका मूल आवेदन के लिए आवेदन दायर किए जाने के माह से पूर्व के 3 वर्षों की अवधि के लिए देय होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि उपर्युक्त पैरा 3D में संदर्भित निर्देश उस सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पर लागू नहीं होंगे जिसने भारत संघ एवं अन्य बनाम एवं सिद्ध राज्य में निर्णय के बाद केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण उच्च न्यायालयों सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका मूल आवेदन या हस्तक्षेप के लिए आवेदन दायर किया हो, क्योंकि ऐसे मामलों में पैरा 3A में संदर्भित निर्देश लागू होंगे। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि बकाया राशि सहित कोई अतिरिक्त भुगतान पहले ही किया जा चुका है तो भुगतान की गई ऐसी राशि की वसूली नहीं की जाएगी। न्यायालय ने निर्णय लिया है कि सभी हस्तक्षेप अभियोजन आवेदनों सहित लंबित आवेदनों का इस आदेश के अनुसार निपटारा किया जाएगा। वे विभाग और विधिक मामलों के विभाग के परामर्श से मामलों की जांच की गई है। ये सलाह दी जाती है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 20/2/2025 के उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई 1 जनवरी को वेतन वृद्धि की अनुमति देने के लिए कार्रवाई की जाए, जो देय होने से एक दिन पहले यानी 30 जून 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि तक संतोषजनक कार्य और अच्छे आचरण के साथ अपेक्षित अर्हक सेवा प्रदान की गई है, ताकि उन्हें स्वीकार्य पेंशन की गणना की जा सके। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, 1 जनवरी 1 जुलाई को काल्पनिक वेतन वृद्धि की गणना केवल स्वीकार्य पेंशन की गणना के उद्देश्य से की जाएगी, न कि अन्य पेंशन लाभों की गणना के उद्देश्य से।
व्यय विभाग के उप निदेशक संख्या इतना दिनांक 29/4/2025 और विधिक कार्य विभाग के कंप्यूटर उप निदेशक संख्या इतना दिनांक 17/3/2025 की सहमति से जारी किया जा रहा है। हिंदी संस्करण भी बाद में आएगा। तो सब कुछ क्लियर है। वीडियो लंबा हो चुका है, लेकिन फिर भी ये बता दें कि जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का अप्रैल में आए निर्णय के पहले केस कर दिया था, कहीं भी लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कहीं भी केस किया है, उन लोगों को तो उनके आवेदन से 3 साल पहले का यानी लाभ मिलेगा। लेकिन जिन्होंने फैसला आने के बाद किया है तो उनको मई 2023 से लाभ मिलेगा। बस इसका रिजल्ट यही है। बाकी अब इसमें सब कुछ क्लियर है। सबका पेमेंट अब इस लेटर के आने के बाद कोई ही लावाली नहीं होनी है, सबका भुगतान हो जाएगा। अति शीघ्र बिल तैयार है सभी जगह, बस भुगतान 1 महीने के अंदर हो जाएगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद।